अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने सिंपल डिस्कस किया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में डिफरेंस क्या होता है। आज हम एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लाइन फिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन दिया गया है कि जिसमें टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं 2 सब्जेक्ट के स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स के। हम लोगों ने एक लाइन फिट करनी है y ऑन x। अब देखिए यहाँ पे y और x मेंशन नहीं है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें y और x मेंशन ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो x है और ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये y है। तो हमने लाइन फिट करनी है y ऑन x। तो फार्मूला हम वही वाला यूज़ करेंगे जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, दैट y इज़ इक्वल्स टू a प्लस bx. So in this case, it is a linear regression model and it is simple linear regression model. How? Because we have only one independent variable and one dependent variable. In any model, there is only one dependent variable, but it is possible that we have one or more than independent variable. If in any model we have only one independent variable, that is called simple linear regression model. But if we have more than one independent variable, then that particular model is said to be multiple linear regression model. So now let's start calculating the values of this a and b, as we discussed in our previous lecture that we have to calculate the values of a and b. So basically, how to calculate a and b? So the formula for the calculation for a is equals to y bar minus bx bar. So how to calculate this y bar? Basically, y bar is equals to sum of y divided by n. And how to calculate this x bar? So x bar is equals to sum of x divided by n. So simply हमने ये मीन फाइंड करना है y का और ये हमने मीन फाइंड करना है x का. Then next thing is that how to calculate this b value. So b is equals to n sum of x into y minus sum of x into sum of y divided by n summation x square minus sum of x whole square. So this is the formula that we are going to use to calculate the values of sum of x and a and b. So basically what we are going to do, that first we have to calculate the value of a, then we will calculate the value of b, then we put both the values of a and b in this regression line. So let's first calculate this y bar and x bar. So for y bar we have to sum up the values of y here and we have to divide them by n mean total number of observation. So यहाँ पे हमारे पास जो total number of observation है they are 12. So हमने सबसे पहले y की तमाम वैल्यूज का सम करना है और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास y बार आ जाएगा. देन वी हैव टू सम अप द वैल्यूज ऑफ x एंड उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो देन वी हैव x बार. सो जब हम y को सम करते हैं तो जो हमारे पास इसका सम आता है x का, तो द सम ऑफ x इज 753 and the sum of y is 643. So now how can we calculate y bar? We have to simply put the values of sum of y here and divide by n. So y bar is equals to sum of y हमारे पास है 643 and the n total number of observation they are 12, so we have to divide it by 12. So when we divide 643 by 12, then we have y bar equals to 53.58. 53.58. And similarly for x bar we have to first of all sum the values of x then divided by 12. So the sum of x is 753, then we have to divide it by 12. So when we divide 753 by 12, then we have the mean for x is 62.75. So here we have x bar and here we have y bar. So we have the
both values for A, that is y bar and x bar, but still we do not have B. So what is the formula for the calculation of B is n summation xy minus summation x summation y and then divided by n summation x square minus summation x whole square. So बेसिकली यहाँ पे अभी हमने क्या करना है कि 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाने हैं। एक कॉलम में हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने x और y को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और एक कॉलम हमने बनाना है जहाँ पे हम लोगों ने x का स्क्वायर लेना है, ठीक है? तो सबसे पहले कॉलम में हमें यहाँ पे ये चाहिए n समेशन xy। समेशन xy का मतलब क्या है कि x को y के साथ मल्टीप्लाई करें देन सम अप। देन हमने क्या करना है x का स्क्वायर करना है, जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल x हैं उन सब का हम 1 बाय 1 स्क्वायर करेंगे और फिर देन उनको सम अप कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉलम बनता है एक्स वाई का, हमने हर एक्स की वैल्यू को इंडिविजुअल वाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 64 को मल्टीप्लाई करना है 557 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 3648। देन हमारे पास आता है 4189। देन हमारे पास आता है 2597। फिर आता है 4154। देन 2805 और फिर इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है 2900। फिर आ जाता है 4235, 2736, 2912 एंड देन हमारे पास आता है 2142 एंड देन हमारे पास आ जाता है 4636। देन हमारे पास आ जाता है 3876। तो ये हमने क्या किया है, हर एक इंडिविजुअल एक्स को मल्टीप्लाई किया वाई के साथ। 75 को 59 के साथ ये आ गया, 53 को मल्टीप्लाई किया 49 के साथ, 67 को मल्टीप्लाई किया 62 के साथ। तो इस तरह हमारे पास ये एक्स वाई का कॉलम बन गया। नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन करना है एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे हमने हर एक्स का इंडिविजुअल का स्क्वायर लेना है, यानी कि 64 का स्क्वायर लेंगे तो 64 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4096। देन हमने 71 का स्क्वायर लेना है, वो हमारे पास आ जाएगा 5041। तो इसी तरीके से हमने 1 बाय 1 हर एक्स का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हर एक्स का इंडिविजुअली स्क्वायर ले लिया है और ये हमारे पास हर एक्स का स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट कर लेते हैं कि सम ऑफ एक्स वाई कितना आता है। तो सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास आता है 40830। 40830 हमने इन सब वैल्यूज को सम किया। सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आता है 48139। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो b इज इक्वल टू n। n हमारे पास 12 है। टोटल जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास कितनी है 12। देन है समेशन एक्स वाई, यानी कि जो हमने x और y को मल्टीप्लाई किया था उसका सम क्या आया था, दैट इज 40830 माइनस सम ऑफ x। सम ऑफ x कितना है 753। सम ऑफ y एंड दैट इज 643। देन डिवाइडेड बाय n 12। सम ऑफ x स्क्वायर, ये जो हमने x के हर एक इंडिविजुअल का स्क्वायर किया था तो उसका सम कितना आता है 48139 माइनस सम ऑफ x। सम ऑफ x कितना है 753 और उसका हमने होल स्क्वायर लेना है। तो इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करते हैं और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 4899 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 484179 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 577668 माइनस 567009। देन इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आता है 5781 और ये नीचे आ जाता है 10659 और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.542। तो ये हमारे पास अब b की वैल्यू भी आ गई है और a की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हमने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो a की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, y बार माइनस b x बार। सो बेसिकली a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार।
तो a इज़ इक्वल्स टू y बार हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, वो था 53.58 माइनस b अभी हमने फाइंड किया 0.542 एंड इनटू x बार। तो x बार हमारे पास कितना था? 62.75। तो जब हम इस पूरी चीज़ को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो a की जो हमारे पास वैल्यू आती है, तो यहाँ से जो हमारे पास a की वैल्यू आती है दैट इज़ 19.54, मतलब 62.75 मल्टीप्लाई करेंगे 0.542 के साथ और 53.58 में से माइनस करें तो a आ जाता है हमारे पास 19.54। अब a की वैल्यू भी आ गई है, b भी है। अब इसको हमने बेसिकली सारा काम किया था इस लाइन में पुट करने के लिए। तो यहाँ पे अब हम ये कैसे करेंगे? y हमारे पास क्या था? y इज़ इक्वल्स टू a प्लस bx। तो y इज़ इक्वल्स टू a की जगह पे क्या आ जाएगा? 19.54 प्लस b। b की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है? 0.542, देन x एज़ इट इज़ आएगा। ठीक है? x की जगह पे यहाँ पे अगर हमें कोई वैल्यू गिवन हो कि x ये पुट करें और फिर बताएँ y क्या होगा, तो फिर हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब ये एस्टिमेटेड लाइन है, इसके ऊपर हम ये साइन डाल देंगे कि ये लाइन हम लोगों ने एस्टिमेट कर ली है। ठीक है? अब यहाँ पे देखें, हमने फ़ॉर्मूले में बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम रिग्रेशन लाइन लिखते हैं ना, तो यहाँ पे पॉज़िटिव का साइन लिखते हैं। लेकिन b की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉज़िटिव भी आ सकती है। यहाँ पे b की वैल्यू आई ही पॉज़िटिव है। तो इसका मतलब ये है कि इफ x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, देन y विल बी इंक्रीज्ड बाय 0.54 यूनिट। क्योंकि पॉजिटिव साइन है, तो हमें यहाँ से ये इंडिकेशन मिला कि व्हेन x इंक्रीजेस देन y आल्सो इंक्रीजेस। अब इसमें जो b की वैल्यू है, जो सारा काम अब ये कर किस लिए रहे थे, बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल डूइंग दिस? इसका ऑब्जेक्टिव ये, इसका पर्पस क्या है कि इफ x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, इसकी इंटरप्रिटेशन हमेशा हमने ऐसे करनी होती है 1 यूनिट के अकॉर्डिंगली, 1 यूनिट के रेफरेंस के साथ, कि इफ x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट देन y विल बी इंक्रीज्ड बाय 0.54 यूनिट। या अगर हम इसको परसेंटेज में कहेंगे तो 1% ये बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से वो 0.54% बढ़ेगा। ठीक है? तो लेकिन नॉर्मली जो इंटरप्रिटेशन है वो 1 यूनिट के हिसाब से करते हैं। सो बेसिकली इफ x increases by 1 unit, then y increased by 0.54 यूनिट्स। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता, तो फिर इसका मतलब ये था कि इफ x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, देन x विल बी डिक्रीज्ड बाय 0.54 यूनिट। तो अगर नेगेटिव है, तो उसमें हमने इनवर्स रिलेशनशिप बताना होता है। पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि अगर x बढ़ रहा होगा तो y भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो इस लेक्चर में यहाँ तक इतना ही, लेकिन इसमें हमारे कुछ और फर्दर चीजें हैं जो हम इंशाल्लाह इसी के कंटिन्यूअस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।